Hello बच्चों, let's read this question. The question says when an atom or an ion is missing from its normal lattice site, a little vacancy Schottky defect is created. In stoichiometric ionic crystals, a vacancy of one ion has to be accompanied by the vacancy of the oppositely charged ion in order to maintain electrical neutrality. In Frankel defect, an ion leaves its position in the lattice and occupies an interstitial void. This is the Frankel defect commonly found along with the Schottky defect and interstitials. जो स्टोशियोमेट्रिक आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें क्या होता है, दो टाइप के डिफेक्ट फॉर्म होते हैं, एक फ्रेंकल और एक शॉर्टकी। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो आयन होता है वो अपनी पोजीशन से स्लिप करके लेटिस में या इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके ऑक्यूपाई हो जाता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं। In pure alkali halides, Frankel defects are not found since the ions cannot get into the interstitial sites. Frankel defects are found in silver halides because of the small size of silver positive ion. Unlike Schottky defects, Frankel defects do not change the density of the solids. In certain ionic solids, example silver bromide, both Schottky and Frankel defects occur. The defect discussed above do not disturb the stoichiometry of the crystalline material. There is large variety of non-stoichiometric inorganic solids which contains an excess or deficiency of one of the elements. Such solids showing deviations from the ideal stoichiometric composition form an important group of solids. अभी क्या होता है, एक होता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें डिफेक्ट्स किस टाइप से होते हैं, एक तो होता है मेटल के एक्सेस की वजह से और एक मेटल की डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल की स्टोशियोमेट्री होती है वही चेंज हो जाती है। For example, in the vanadium oxide, X can be anywhere between 0.6 and 1.3. There are solids which are difficult to prepare in the stoichiometric composition. Thus, the ideal composition in compounds such as iron oxide is difficult to obtain. Normally, we get a composition of iron 0.95 oxide, but it may range from iron 0.93 oxide to iron 0.96 oxide. Non-stoichiometric behavior is most commonly found for transition metal compounds, though is also known for some lanthanoids and actinoids. Zinc oxide loses oxygen reversibly at high temperature and turns yellow in color. The excess metal is accommodated interstitially, giving rise to electrons trapped in the neighborhood. The enhanced electrical conductivity of the non-stoichiometric zinc oxide arises from these electrons. Anion vacancies in alkali halides are produced by heating the alkali halide crystal in an atmosphere of the alkali metal vapor. When the metal atoms deposit on the surface, they diffuse into the crystal, and after ionization, the alkali metal ion occupies cationic vacancy, whereas electron occupies anion vacancies. Electrons trapped in anion vacancies are referred to as F centers. That gives rise to interesting color in alkali halides. Thus, the excess of potassium in potassium chloride makes the crystal appear violet, and excess of lithium in lithium chloride makes it pink. अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हेन लिथियम क्लोराइड इज हीटेड इनटू द वेपर ऑफ लिथियम द क्रिस्टल एक्वायर्स पिंक कलर, दिस इज ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट लीडिंग टू एफ सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन की, ये क्या होता है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन में क्या होता है, जब किसी भी मेटल क्रिस्टल को उसी मेटल के वेपर्स के साथ हीट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं वहां से आयंस फॉर्म होते हैं उस मेटल के। तो क्या होता है, जो अनायन होता है वो उस मेटल आयन के साथ चला जाता है और वहां पे क्या करता है, वहां पे वेकेंट साइड छोड़ देता है। और जो वेकेंट साइड होती है उसमें क्या आके ऑक्यूपाई हो जाता है, वहां पे जो वेपर से आयंस फॉर्म हुए थे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी फॉर्म हुए थे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस वेकेंट साइड में आके ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या फॉर्म होता है, एफ सेंटर्स फॉर्म होते हैं। और ये जो एफ सेंटर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मेटल क्रिस्टल्स होते हैं उनके कलर्स के लिए, responsible for colors of solid crystals। अभी जैसे अगर हम बात करें लिथियम क्लोराइड की, अगर हम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिथियम आयंस है इस क्रिस्टल में और क्लोराइड आयंस है इस टाइप से।
अगर हम इसको हीट करवाएंगे लिथियम वेपर की प्रेजेंस में, तो लिथियम वेपर क्या फॉर्म करेगा, लिथियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्सेस लिथियम आयंस होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करेंगे, वो क्लोराइड आयंस को बाहर ले जाएंगे और वहां पे क्या फॉर्म कर लेंगे, वो लिथियम क्लोराइड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो लिथियम आयन के साथ चला जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वेकेंट साइट बच जाएगी। जो ये क्रिस्टल होगा ये किस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे लिथियम आयन है, यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी, यहाँ पे फिर लिथियम आयन है, क्लोराइड आयन, लिथियम आयन, क्लोराइड आयन। अभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आके इस वेकेंट साइट में ऑक्यूपाई हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे लिथियम आयन, क्लोराइड आयन, लिथियम आयन, क्लोराइड आयन। और जब ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें ऑक्यूपाई होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ सेंटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो क्लोराइड आयन है ये लिथियम आयन के साथ जाके क्या फॉर्म करेगा, वहां पे लिथियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा। तो क्रिस्टल्स में जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, इन एफ सेंटर्स की वजह से होता है। किसी भी क्रिस्टल में जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ एफ सेंटर्स होंगे उतने ही ज्यादा उसकी कलर की इंटेंसिटी होगी। तो जो लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल है इसका जो पिंक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इन एफ सेंटर्स की वजह से, ड्यू टू एफ सेंटर्स। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, जब यहाँ पे एनायन की वैकेंसी होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके ऑक्यूपाई हो जाता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, ये एफ सेंटर्स फॉर्म करते हैं। सो द फाइनल आंसर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट लीडिंग टू एफ सेंटर्स, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।